Good morning, everyone. We will start and within 2-3 minutes. I will start. Okay.
Okay, good morning everyone. Yesterday we were doing how to write down the cell reactions. ठीक है? So only 2 reactions we have seen so far. I will tell you the more cells and how to write down the reaction. I think we have done 2 yesterday. 2 or 3? 2 na? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So I'm writing here another reaction. Reaction number 3. ठीक है? That is क्या लिखो? SN solid, SnCl2. Suppose I'm writing here 0.2 molar, and I will write down over here Ag. ठीक है? AgCl that is in contact with Ag solid. This is 2 molar. So we have to write down the cell reaction. What should I write down first of all here? First of all, I will write down reduction half reaction. ठीक है? Reduction half reaction. इसका reduction होगा. So it will write down Ag plus will accept 1 electron, forms Ag solid. Next is oxidation half reaction. Oxidation किसका होगा इसका ना? So Sn solid gets converted into Sn2 plus the loss of 2 electrons. But number of electrons are not equal. So I'm going to multiply this by 2. ये cancel हो गया. We will get here Ag plus Sn solid 2 Ag solid plus Sn2 plus. समझ गया ये रिएक्शन अच्छे से? Understood everybody? Hello? Okay. अभी देखो, अभी थोड़ा रिएक्शन थोड़ा अलग करते हैं. I will write down here platinum solid H2 gaseous 1 atmosphere HCl. This is 1 molar. Thank you. एक सेकेंड ना बच्चों. Okay, HCl, and then we are going to combine this with कॉपर सल्फेट के साथ कर देते हैं. चलो कॉपर सल्फेट 1 molar Cu solid. Okay, so what is easier to write down this? So I will write down here reduction half reaction. चलो आप लोग बताओ, कॉपर के पर +2 चार्ज होता है, कैसे लिखूं? टेल मी. Cu, वेरी गुड. इसके साथ कितना आएगा? वेरी गुड. Cu solid, perfect, very good. अब देखो, we have to write down here oxidation half reaction. करेक्ट? अभी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा ना हाइड्रोजन का. So I will write down here H2 gas gets converted into H plus with the loss of electron. समझा? Gas ये 2 है. H2 gas converts into H plus. ऑक्सीडेशन हो गया ना 0 2 plus 1. अभी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2. यहाँ पे क्या लिखूंगी? 2. इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? 2. समझा ये स्टेप समझा? Yes, ma'am. सबको समझ आया बच्चों? देखो, हाइड्रोजन गैस था. गैस इज ऑक्सीडाइज्ड टू H प्लस एन इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 2 ऐसे 2 किया, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हो गए. अभी ऐड करो, ये और ये कैंसिल हो गया. यू विल गेट Cu2 प्लस
plus H2 gas gives you Q solid plus 2H plus. क्लियर? एक और एग्जांपल लेती हूँ, कौन सा लूँ? चलो क्रोमियम का लेती हूँ। क्रोमियम सॉलिड CrCl3 2 मोलार। अभी मैं है ना क्लोरीन वाला लेती हूँ। क्लोरीन सॉलिड और सॉरी प्लेटिनम सॉलिड, क्लोरीन गैस 1 एटमॉस्फेयर HCl 1 मोलार। देखो ये साइड पे क्लोरीन है, ये साइड पे क्रोमियम है, ठीक है। So first of all I will write down here reduction half reaction, ठीक है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन किसका होगा? देखो क्लोरीन का रिडक्शन होगा ना, तो मुझे बताओ Cl2 0 से Cl माइनस बनेगा या Cl माइनस से Cl2 0 बनेगा? रिडक्शन मतलब Cl minus से Cl0। कैसा रिडक्शन? Miss first one. फर्स्ट हाँ Cl2 0 फर्स्ट से वन रहेगा Cl ना। माइनस यस, क्योंकि 0 से -1 को गया तो रिड्यूस होगा ना। 0 माइनस से बड़ा है कि नहीं? हाँ यस मैम यस। समझा? ऐसे होएगा है ना। यस ठीक है। तो कैसे होगा अभी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cl2 gas accept electrons and gives you Cl minus। समझा? अभी रिडक्शन हो गया। यहाँ पे Cl कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? 2। ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये स्टेप समझा कि नहीं समझा? ये बोलो पहले। अच्छा अगर समझा मैम। ऑक्सीडेशन होता तो हम लोग उल्टा लिखते हैं। ऑक्सीडेशन पे होता अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे होता तो कैसे लिखते हैं? 2Cl minus converted into Cl2 gas with the loss of 2 electron। समझा? क्योंकि माइनस से 0 हो गया मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, अभी 0 से माइनस हो गया मतलब रिड्यूस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? क्रोमियम है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। चलो क्रोमियम है तो Cr solid gets converted into Cr3 plus with the loss of 3 electrons। हो गया? अभी ये कैंसिल तो नहीं हो सकता, क्या करूं? दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 2 6 बराबर। अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, समझा बच्चों? ये हो जाएगा 3Cl2 गैस प्लस 2Cr solid gives you 2Cl, sorry 6 ना, 6Cl minus प्लस 2Cr3 प्लस। समझा? ये समझ आया अच्छे से? पहले इतना बोलो। यस मैम। सबको अच्छे से समझा? हाँ मैम। अच्छा अभी देखो, पहले 3-4 सिखा देती हूँ फिर एक साथ लिखो, ठीक है। उसके बाद अभी मैं लेती हूँ एग्जाम्पल Pt सॉलिड। चलो Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस, ये ले लिया सपोज 1 मोलारी। इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ जिंक सल्फेट which is also 1 molar and zinc solid। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? रेडॉक्स। याद आया? कल बताया था रेडॉक्स पेयर। अभी ये कैसे लिखेंगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आप लोग टेंशन मत लो बच्चों, जितना फास्ट मैं लिख रही हूँ ना उससे फास्ट आपको आएगा 2 दिन में। सिर्फ आप लिखोगे ना 2-3 बार आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। ये हो गया रिडक्शन। क्या लिखेंगे इधर? Zn2 plus will accept 2 electron forms Zn solid। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अभी देखो हाँ बच्चों मजा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन दिया हुआ है कि आपको किससे किसको ऑक्सीडाइज करना है? +2 से +3 को ऑक्सीडाइज करना है, समझा? So I will write down here Fe2 plus is getting converted into Fe3 plus, but electrons involved will be 1। यहाँ पर +3 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? हम लोग हमेशा चार्ज चेंज लिखते हैं तो ना। वाला आंसर। हाँ परफेक्ट आंसर।
बिकॉज यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो एक ही इलेक्ट्रॉन से हुआ है, देखो एक ही चार्ज चेंज हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पे -1 इलेक्ट्रॉन ही लिखूंगी, +1 इलेक्ट्रॉन ही लिखूंगी, समझा? ये वाला चीज ध्यान में रखना है। अभी सपोज देखो मैं लिखती हूँ Cu2+ एंड Cu+, किसी में भी कन्वर्ट करो, इलेक्ट्रॉन कितना लिखेंगे हम लोग, एक ही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ना, कन्वर्जन एक ही चार्ज का है, ठीक है? इफ आई एम राइटिंग हियर Sn2+ एंड Sn4+, कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कन्वर्जन जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का है। आई बात समझ में? सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर दिस। अब क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, this gets cancelled, it will be Zn2 plus 2 Fe2 plus gives you Zn solid plus 2 Fe2 plus। बोलो समझे आपको? 3+, Miss Fe3 3 plus plus हाँ 3 सॉरी plus सॉरी Fe3 plus, सॉरी एक मिनट, Fe3 plus करेक्ट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यहाँ तक जो भी पढ़ाया मैंने, गैस इलेक्ट्रोड का कैसे लिखते हैं, सेल रिएक्शन, एंड ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का कैसे लिखते हैं, अंडरस्टूड बच्चों? एनी डाउट्स सो फार? इतना लिख लो, फिर मैं आपको 3-4 सेल देती हूँ, आप लोग सेल रिएक्शन लिखना, ठीक है? कॉपी डाउन दिस, कल 2 लिखा था, दिस इज थर्ड वन, प्लीज नोट डाउन। हेलो, समझा क्या बच्चों सबको अच्छे से? yes ma'am एनी yes क्वेश्चन? ma'am सबको समझा ना अच्छे से? कुछ भी नहीं समझा होगा तो प्लीज पूछो, प्लीज। लिख लो आप लोग, हो जाएगा तो बोलो, मैं कैमरा नीचे करती हूँ। मैम कैमरा थोड़ा नीचे लो ना। ठीक है, दिख रहा है? रुको ऊपर ही पकड़ती हूँ। हो जाएगा तो बोलो, हाँ, फिर नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। ये दिख रहा है क्या ऊपर वाला?
This page is done. Okay. ये तो फिफ्थ वाले का आंसर इधर है बच्चों. आई होप आपको समझा. ये 6 कैसे आए. चाहिए तो आप लोग नीचे वापस से लिखो. 3Cl2 6 इलेक्ट्रॉन 6 Cl माइनस ऐसे. हो गया बच्चों. Please let me know if you are done बच्चों. Okay. सबका हो गया. ठीक है. तो मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगी. ठीक है. तुम लोग बताना सेल रिएक्शन उसका लिख के. Ready everyone? Yes, ma'am. Okay. Question is, write down the cell reactions for the following galvanic cells. ठीक है. First one, cadmium solid CdCl2 1 molar is in contact with NiSO4 1 molar Na solid. पहले आप लोग भी क्वेश्चन लिख लो. हाँ. उसके बाद है Mg solid MgSO4 1 molar. इसको कनेक्ट कर देती हूँ. किसके साथ करूँ? हाँ चलो ठीक है. Pt solid SN4 plus SN2 plus 2 molar. पहले क्वेश्चन लिख लो बच्चों. फिर मैं टर्न करती हूँ पेज. फिर एक साथ आंसर्स लिखो. लिखा ये? डन. क्वेश्चन इज डन. Yes, ma'am. सबका हो गया बच्चों? टर्न करूँ पेज. 4-5 देती हूँ. लिखो आराम से. Yes, प्रैक्टिस हो जाएगा एकदम. अभी थर्ड वाला है. थर्ड वाला क्या दूँ तुम लोगों को मैं? चलो.
Pb solid, lead sulfate 2 molar is in contact with Pt solid, Pr2 gas 1 atmosphere, HBr 1 molar। देखते हैं किसको आता है ये। क्लोरीन जैसा ही है, खाली क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आएगा। फोर्थ वन, हाँ चलो ठीक है। Pt solid, Cu2 plus Cu plus 1 मोलार, और यहाँ पे भी Pt solid, H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर, HCl 1 मोलार, और कौन सा दूर है तुम लोगों को? ठीक है, एक और दे देती हूँ। एल्यूमिनियम सॉलिड AlCl3 0.2 मोलार, इसके साथ लगा देंगे कोबाल्ट को। चलो, कोबाल्ट सॉलिड CoCl2 2 मोलार। अभी यहाँ पर मैं लिखती हूँ सिर्फ Fe सॉलिड FeSO4 2 मोलार। देखो मैंने हाफ सेल लिखा है। हाफ सेल का कौन सा रिएक्शन लिखते हैं हमेशा? सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। Pt solid Ce4 plus to Ce3 plus 1 molar is in contact with क्या लिखूं अभी मैं? Pt solid iodine gas 1 atmosphere, Hi 1 molar। चलो इतना करो, देखो आता है क्या। एक और दे देती हूँ। Pt solid मैम वो 7th वाला दिखाना। एक मिनट हाँ, लिख देती हूँ एक मिनट। ऊपर पकड़ती हूँ कैमरा, रुक जाओ। जहाँ पे मैंने हाफ सेल लिखा है उसका कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन। ये जो इसका ब्रोमीन और आयोडीन दिया है ना, इट इज एग्जैक्टली एज क्लोरीन ना, समझा? तो जरा ध्यान से पहले क्वेश्चन लिख लो। आई विल गिव यू 10 मिनट्स टू राइट डाउन दिस। अच्छे से सब रिएक्शंस लिखो। किसी का चार्ज नहीं पता होगा तो पूछ लेना। पीबी के ऊपर +2 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम कैरीज +3 चार्ज। यहाँ पर Fe का चार्ज +2 है। आयोडीन कैरीज -1 चार्ज। ये तुम लोगों ने अच्छे से कर लिया ना, तो तुम लोग को फिर आगे का नॉन इक्वेशन वो सब एकदम अच्छे से आएगा, क्योंकि नॉन इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन ही शुरू होता है सेल रिएक्शन से। समझ रहे हैं ना बच्चों? बहुत ऐसे फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना? समझ हेलो, रहा है। हाँ ओके। फास्ट लगेगा तो बोलो मुझे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। दिस इज कोबाल्ट। हाँ, यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है। क्वेश्चन हो जाएगा तो बोलो, फिर मैं कैमरा नीचे रख देती हूँ, फिर तुम लोग आराम से लिखो। क्वेश्चंस आर डन बच्चों।
ओके, नीचे रख दूं कैमरा? लिखो अभी फटाफट, अभी 11 बज रहा है। 11:10 पर वी विल डिस्कस ऑल द रिएक्शंस, ठीक है? किसी को कुछ नहीं समझेगा तो पूछो, या फिर उसको छोड़ दो। व्हाइल डिस्कसिंग आई विल डू एवरीथिंग, ठीक है? क्या हुआ ऋषि? हाँ, तो फिर अभी ऋषि आपको समझ नहीं रहा है, क्या करूँ मैं अभी आपको? रुको 2 मिनट, जब भी सबका डिस्कशन चलेगा ना वो टाइम पे करो, ठीक है? लिख के रखो क्वेश्चन, डोंट वरी। अभी मैं सबको सबके आंसर्स लिखूंगी ना, वो टाइम पे समझ आ जाएगा, तभी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? और किसको नहीं समझ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? आर यू ऑल आ एबल रहा टू है राइट मैम। डाउन द? हाँ, ओके। यस कशिश, पीबी कैरीज +2 चार्ज, करेक्ट। कोबाल्ट के ऊपर भी +2 चार्ज, ये वाला +2।
कितने हो गए बच्चों? मैम done? 6 क्वेश्चन में सिर्फ रिडक्शन हाफ लिख के छोड़ देना है। किसका 6 और हाँ हाँ यस यस, ओनली रिडक्शन हाफ रिएक्शन इधर छोड़ देना, इधर पे भी रिडक्शन। 6 और 8 में रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख के छोड़ देना है, करेक्ट। So you have only 1 minute to answer. हो गया सब? हेलो, डन बच्चों? प्लीज से यस और नो, हुआ यस कि मैम नहीं हो हुआ? गया। ओके चलो आंसर्स बताऊं मैं। देखो मुझे पहला सेल देखने दो क्या दिया था। कैडमियम एंड निकल, ठीक है। पहले वाले का रिडक्शन हाफ रिएक्शन, निकल वाज ऑन द राइट हैंड साइड, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा Ni2 plus will accept 2 electrons, forms Ni solid, oxidation half reaction, ठीक है। cadmium solid gets converted into Cd2 plus with 2 electrons, electrons cancel हो गए, Ni2 plus Cd solid gives you Ni solid plus Cd2 plus। ये सबका राइट है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबका ओके, वेरी Yes, गुड। ma'am. चलो ठीक है, रुक जाओ जरा मेरे को क्वेश्चन देखने दो। सेकेंड वाला क्या था? मैग्नीशियम एंड एसएन का पेयर था, ओके। सेकेंड वाला रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अभी देखो राइट साइड पे आपका एसएन है, दैट इज टिन, एंड +2 to +4 वाला है, ठीक है। तो रिडक्शन कैसे होगा? SN4 plus will take 2 electrons and form SN2 plus। ये सबने बराबर लिखा है बिकॉज +4 से Yes, +2 हो ma'am. गया, दैट इज व्हाट विल बी 2 यस electrons, मैम। ठीक है। ये ध्यान में रखना, ओके वेरी गुड। एंड ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम वाला है ना, हाफ रिएक्शन, सो मैग्नीशियम सॉलिड is getting converted into Mg2 plus 2 electrons। करेक्ट आया सबका आंसर? SN4 plus Mg solid gives you SN2 plus Mg2 plus, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट इज अभी अपना
ब्रोमीन राइट साइड पे है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ब्रोमीन इज अ गैस, तो कैसे हो जाएगा, Br2 will accept 2 electrons and forms 2 Br minus, ये सबका राइट है, Yes, ma'am. जैसे क्लोरीन का Yes, किया था ma'am. वैसे होएगा ना, हाँ यस वेरी गुड, जैसे क्लोरीन का था वैसे रहेगा 0 -1, ठीक है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। चलो नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, किसका होएगा ऑक्सीडेशन अभी, लेड का ना, तो Pb solid is getting converted into Pb2 plus 2 electrons। चलो अभी मैं कैंसिल लिख नहीं रही नीचे, चलेगा, आया सबका आंसर ये, टोटल रिएक्शन लिखूं क्या कि समझ गया, Br2 plus Pb solid 2 Br minus plus Pb2 plus, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, थर्ड तक, ओके चलो नेक्स्ट, अभी राइट साइड पे प्लेटिनम है, मतलब प्लेटिनम मतलब हाइड्रोजन, सॉरी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन ना, रिडक्शन मतलब H प्लस विल टेक इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स H2, ये 2 है तो ये भी 2 और ये भी 2, ये बराबर लिखा सबने, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबका करेक्ट है, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ध्यान में रखने का कि प्लस से 0 हो रहा है तो रिडक्शन हो गया, और दूसरा क्या है, कॉपर का पेयर है ना, तो इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, तो Cu plus is getting converted into Cu2 plus with 1 electron only, ये भी बराबर लिखा सबने, that was a redox pair, +1 से +2, एक ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, एंड ऑक्सीडेशन मतलब +2 ठीक है, अब क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, you will get 2H plus 2Cu plus H2 plus 2Cu2 plus, चलो किसी को डाउट है यहाँ तक, No, ma'am. एनी क्वेश्चन सो फार, सबको समझ रहे हैं अच्छे से, No, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वन, हाँ राइट साइड पे कोबाल्ट है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जिसको ये आ गया ना उसको पूरा आगे का नॉन इक्वेशन और उसका न्यूमेरिकल सब अच्छे से आ जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, CO2 plus 2 electrons CO solid, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्या था, एल्यूमिनियम था ना, तो Al solid is converted into Al3 plus 3 electrons, चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये 2 2 6, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 कैंसल, CO2 plus 2 aluminium solid 3 CO solid plus 2 Al3 plus, करेक्ट है सबका, Yes. ओके चलो Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा था, FeFeSO4 वाला ना, सिक्स्थ वन, FeFeSO4 वाला, तो एक ही इलेक्ट्रोड है ना, तो उसको सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन लिख देने का, Fe2 plus will accept 2 electrons and forms Fe solid, हो गया इसका, इतना ही है, करेक्ट है सबका। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन ma'am. क्या है, सीरियम एंड आयोडीन वाला, ओके आयोडीन राइट पे है ना, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आयोडीन का रिडक्शन होएगा, इलेक्ट्रॉन का कैसे समझता है ये देखो, इफ आई एम राइटिंग Na प्लस तो यहाँ पे प्लस एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इफ आई एम राइटिंग Cu2 प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, इफ आई एम राइटिंग Al3 प्लस तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। आप है ना ऋषि कल वाला लेक्चर देखो, रिकॉर्डिंग कल सुबह और शाम वाला, नहीं शाम वाला नहीं सॉरी, कभी सिखाया था बच्चों ये मैंने, सेल Morning पे रिप्रेजेंटेशन एंड रिएक्शन, कल और परसों ना, 2 दिन में सिखाया था ना मैं कल ऋषि, सिखाया आप वो, हाँ और वो सेल रिप्रेजेंटेशन भी शायद कल ही सिखाया था ना,
हाँ तो ऋषि आप वो कल सुबह वाला लेक्चर देखो सर के पास से लेके, फिर आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अभी आयोडीन का रिडक्शन होएगा। रिडक्शन मतलब 2i माइनस, नहीं नहीं रिडक्शन, सॉरी क्या लिखेंगे, हाँ बराबर था, 2i माइनस इज गेटिंग, ओ सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया, आयोडीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2i माइनस, बराबर है ये सबका, करेक्ट ना? यस और नो? हेलो, रिडक्शन होएगा ना आयोडीन का 0 to -1। हेलो, हाँ मैम। हाँ हाँ ओके ओके। और फिर उसके बाद दूसरा पेयर क्या था इसके साथ, देखने दो जरा, क्वेश्चन क्या था, सीरियम +3+4 ऑक्सीडेशन होएगा, मतलब Ce3+ इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू C4+, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन लिख, क्यों, क्योंकि +3 से +4 गया, दिया हुआ है अपने को, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लो कैंसिल, I2 2Ce3+, 2i माइनस प्लस Ce4+, करेक्ट है सबका? नाउ द लास्ट वन, Au+ एंड Au3+, ओके, तो इसका सिर्फ रिडक्शन ही लिखेंगे ना, Au3+ will take 2 electrons and form Au+, why 2 electrons, 3 से +1 की तरफ 2 electrons है, बोलो किसको डाउट है? ऋषि डोंट वरी, फिर सी द वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल है एकदम, ठीक है, डोंट वरी, थोड़ा बहुत तो समझा होगा, इसको रिडॉक्स पेयर बोलते हैं। एवरीबॉडी गॉट दिस करेक्ट? किसका सब राइट है? ऑल 8 आर राइट, किसका है आंसर? लिखो ऐसे, ये लिखो चैट बॉक्स में, ऐसे थम्स अप दे दो या फिर ऐसे कुछ तो लिखो, यस ऐसा, ऑल 8 किसके राइट है? ओके ठीक है, वेरी गुड, कशिश, नियति, वेरी गुड, आया ना सबको समझ में सेल रिएक्शन? तो क्या मैं ये कंसिडर करूँ कि आपको सेल रिएक्शन अच्छे से आ गया एकदम 100%? बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, 15 तो ले ही लिए आराम से, ठीक है, आगे बढ़े अभी हम लोग। किसी को कुछ डाउट है सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन में, हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल एंड हाउ टू राइट ऑन द सेल रिएक्शन? अभी देखो ये देख के हम लोग सेल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं ना, C3+2 4+ दिख रहा है, Yes. आयोडीन दिख रहा है, तो हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, और ये सब क्वेश्चंस आते हैं 4-4 मार्क्स के लिए आते हैं नीट JEE में, बहुत सिंपल है, तो एकदम बिंदास कर देने का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो छोड़ने का ही नहीं। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अरे 11:30 भी हो गया इतने जल्दी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, करेक्ट, just pay attention, don't write anything, I will give you everything डिटेल में, पूरा डेफिनेशन वो सब मैं दे दूंगी। देखो अभी मेरे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड है, एक है कैथोड और दूसरा क्या है मेरे पास, एनोड। इफ आई एम टेकिंग योर सोल्यूशन एंड इफ माय इलेक्ट्रोड इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इफ माय इलेक्ट्रोड इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, मतलब मेरा इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज छोड़ रहा है ना, तो माय सोल्यूशन विल डेफिनेटली कैरी पॉजिटिव चार्ज, यस और नो? क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इज इट राइट? तो अगर ये एनोड है, करेक्ट, एनोड है मतलब वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोड से सोल्यूशन के अंदर जाएंगे ना आयंस, तो इट विल लीव द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस विल गो इनटू द सोल्यूशन। तो दिख रहा है यहाँ पे दो अलग अलग पोटेंशियल है। वैसे ही इफ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो अगर इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव चार्ज है तो मेरे सोल्यूशन को क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सो एट दिस जंक्शन देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। So what is potential, electrode potential? The potential difference
ध्यान से सुनो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन है ना, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, करेक्ट। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन electrode half sorry the potential difference between electrode half reaction occurring at the electrode surface, बराबर है कि नहीं? ये देखो, और दूसरा डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, the potential difference between the electrode and the solution around it at the equilibrium, correct। the potential difference between the electrode and the solution around it, तो अगर इलेक्ट्रोड ये वाला एनोड है तो उसके आसपास वाला सोल्यूशन, कैथोड है तो उसके आसपास वाला सोल्यूशन, या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हाफ सेल इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऑकरिंग एट द इलेक्ट्रोड सरफेस, समझा, व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये समझा कि नहीं, पहले इतना बोलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबको समझा, मतलब आपके इलेक्ट्रोड और आपके सोल्यूशन में ऑपोजिट चार्जेस होंगे और उनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम दो तरह के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, एक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, और दूसरा हो गया रिडक्शन। इज इट वेरी क्लियर? सो व्हाट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? द पोटेंशियल डिफरेंस between the electrode half reaction occurring at the electrode surface, वापस से बोलती हूँ, the potential difference between electrode half reactions which are occurring at the electrode surface is called as electrode potential. Understood? Say yes or no please. Yes, ma'am. हाँ, अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दो तरह के होते हैं, एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसको लिखते हैं ई ऑक्स, ऑक्सी, या फिर इसको क्या लिखते हैं, ई ऑफ एनोड, समझा। और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल जिसको लिखते हैं ई रिड्यूस और ई कैथोड, समझा। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, करेक्ट ना। The potential associated with oxidation half reaction is called as oxidation potential. Reduction potential क्या आएगा बोलो? The potential associated with reduction half reaction is called as reduction potential. मतलब जो potential reduction reaction से related है वो reduction potential होगा, जो potential oxidation reaction से related है वो oxidation potential होगा। ये तीनों definition समझा? What is electrode potential? It is a potential difference between the electrodes half reaction occurring at the electrode surface. They are of two types, oxidation potential and reduction potential. What is oxidation potential? Potential associated with oxidation half reaction is called as oxidation potential. Potential associated with reduction half reaction is called as reduction potential. Bolo, clear? Is it very clear to you all? Yes, ma'am. बच्चों, सबको समझ आ गया? वृंदा, साक्षी, आर्यन, भावेश, जोशुआ, जो लोग कभी बोलते नहीं है उनको पूछ रही हूँ, पवन, तन्वी, प्रशांत, सिद्धू, समझ आया अच्छे से? प्लीज पूछो, नहीं समझेगा तो ठीक है, ओके। हाँ, अभी मुझे बताओ सेल पोटेंशियल लिखना होगा तो कैसे लिखूं? ई ऑफ सेल, आप क्या लिखोगे डायरेक्टली? ई ऑफ कैथोड प्लस ई ऑफ एनोड ना, हम लोग सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? रिडक्शन हाफ रिएक्शन प्लस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, बराबर। तो यहाँ पे सेल रिएक्शन भी कैसे लिखेंगे? ई ऑफ कैथोड प्लस ई ऑफ एनोड, समझ आ गया? ये हो गया मेरा सेल पोटेंशियल, हो गया 4 डेफिनेशन याद से। So अभी सेल पोटेंशियल का क्या रहेगा? हाँ, the overall cell potential is also called as EMF of the cell. Am I right? Electromotive forces. So E of the cell is also called as EMF of the cell. It is made by the contribution of two electrodes. So it is the algebraic sum of electrode potentials. Am I right? It is the algebraic sum of electrode potentials. बोलो, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया अच्छे से? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है,
और सेल पोटेंशियल क्या होता है। क्लियर? चलो अभी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल की। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। पहले एक बार एक साथ सब पढ़ा देती हूँ, फिर एक साथ सब लिखो, ठीक है। नाउ वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स। अभी सबसे पहले व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशंस। मैंने आपको ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया है। इफ यू आर यूजिंग लिक्विड और सॉलिड, दे शुड बी इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, pressure 1 atmosphere, concentration 1 molar. If these four conditions are followed, these are called as standard conditions. ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेरा जो पोटेंशियल है कैसे हो जाएगा, व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ टर्म स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मेरा कैसे लिखूंगे मैं अभी इसको, स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ एनोड बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको कैसे लिखेंगे, ई नॉट ऑफ कैथोड बराबर। अब इसका डेफिनेशन क्या आएगा, देखो व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल associated with oxidation half reaction when all the species involved are under standard condition। करेक्ट है। आगे एक ही स्टेटमेंट ऐड करना है, when all the species involved are under their standard condition। what is reduction potential? Potential associated with reduction half reaction when all the species involved are under their standard condition। बोलो क्लियर? क्लियर हो गया इतना? Yes, ma'am. अभी ई नॉट ऑफ द सेल मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल कैसे लिखेंगे, ई नॉट ऑफ द सेल। तो रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए, ई नॉट ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑफ एनोड आना चाहिए। सब लोग अग्री करते हैं इस चीज से, बट ये केस में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एक कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं IUPAC कन्वेंशन। दे हैव प्रूव्ड दैट द ई नॉट ऑफ कैथोड, किसी भी सेल का दुनिया के किसी भी सेल का ई नॉट ऑफ द कैथोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई नॉट ऑफ एनोड। इसलिए आपको याद है हम लोग जब भी सिंगल सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो कैथोड रिप्रेजेंट करते हैं, याद आ गया। और सिंगल रिएक्शन भी लिखते हैं तो रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं। तो ई नॉट ऑफ द सेल IUPAC की वजह से कैंसिल होके क्या बन गया, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये आपका फॉर्मूला है, समझा। सिर्फ IUPAC ने क्या बोल दिया यहाँ पर कि ठीक है तुम्हारा राइट है, दोनों का एडिशन होना चाहिए। बट जब हर बार ऑब्जर्व किया गया तो व्हाट हैज बीन प्रूव्ड, इट हैज बीन प्रूव्ड दैट the potential of cathode standard potential of cathode is always greater than standard potential of anode. That is why I am going to write down here E naught of cathode minus E naught of anode for the standard EMF of the cell. ये समझ आया सबको अच्छे से? Any questions so far? अभी देखो, हाँ भी जोक बताती हूँ। Yes, I will repeat what I said over here. Standard potential, we have to consider here 4 different conditions. Liquids and solids should be in the purest form. Temperature 25 degrees Celsius. Pressure 1 atmospheric pressure. ठीक है, concentration 1 molar. So what is standard oxidation potential? Potential associated with oxidation half reaction when all the species involved are under their standard condition. What is standard reduction potential? Potential associated with reduction half reaction when all the species involved under their standard conditions. ठीक है, so according to the rule जैसे हमने यहाँ पे किया था हेली, देखो ये क्या था, E of the cell is equals to E of cathode plus anode होना चाहिए, correct? It is the addition of these two, but in this case what we are writing, E naught of the cell is equals to E naught of cathode plus E naught of anode होना चाहिए with respect to the
proper rule. बराबर है. But according to IUPAC convention, it has been proved experimentally that E naught of cathode of every cell, दुनिया के किसी भी सेल का E naught of the cathode हमेशा बड़ा होता है E naught of the anode से. तो आप इसको हमेशा में लिखोगे. तो अगर मुझे स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल निकालना है तो इंस्टेड ऑफ एडिंग आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दैट. ठीक है, ये IUPAC ने चेंज कर दिया. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन हियर, E naught of the cell is equals to E naught of cathode minus E naught of anode. अभी देखो कभी कभार क्या होता है पता है, I will write down here Mg solid Mg2 plus इसका E naught of the cell है, ठीक है, इसका E naught of the cell है माइनस 0.732 वोल्ट. मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको एक एग्जाम्पल. और दूसरा दिया हुआ है मेरे पास, सपोज क्या लिखूं, चलो क्या लिखते हैं निकल ले लेते हैं, चलो ठीक है, Ni2 प्लस एंड Ni सॉलिड, इसका E naught ऑफ द सेल है माइनस 0.273 वोल्ट. मुझे बोला है सेल कंस्ट्रक्ट करो. क्या पूछा है मुझे, अभी ये दे दिया और बोला सेल कंस्ट्रक्ट करो. तो मैंने क्या बताया, जो बड़ा रहेगा वो कैथोड रहेगा. दोनों में से बड़ा कौन है, निकल का वैल्यू बड़ा है कि मैग्नीशियम का, निकल का. निकल का. निकल का. तो निकल क्या बन जाएगा, कैथोड. मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, एनोड. समझा. ऐसे EMF से भी आप सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. आई बात समझ में बच्चों? रियली इज इट क्लियर बेटा नाउ? Yes, ma'am. ओके, ये समझ आया अच्छे से? दे मे गिव यू दीज वैल्यूज एंड दे विल आस्क यू टू कंस्ट्रक्ट. तो देख लेने का, कभी कभार नहीं देते कि कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है, तो सेल पोटेंशियल देने का, स्टैंडर्ड वाला, नॉर्मल वाला नहीं, स्टैंडर्ड वाला, क्योंकि सबके फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं. ठीक है, उसको देख के क्या करने का, सेल कंस्ट्रक्ट कर देने का. उसको देख के लिख देने का, अभी ये छोटा, ये सबसे बड़ा है ना, तो ये कैथोड होगा, मतलब इसका रिडक्शन होएगा और इसका ऑक्सीडेशन होएगा. सेल रिएक्शन लिख के फॉर्मूला डाल के सॉल्व कर देने का, हो गया. क्लियर? आई होप यू ऑल आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड. इजी है? Yes, ma'am. समझ रहे हैं सबको? चलो अभी हेडिंग लिखो. पहले इतना लिख लो, ठीक है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. इतना डेफिनेशन लिखो, फटाफट से लिखो. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल. लिखा. उसमें सबसे पहला डेफिनेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये चाहिए तो ये ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको आप बोल सकते हो E ऑफ एनोड. ये वाला E ऑफ एनोड है और ये वाला E ऑफ कैथोड है. अगर चाहिए तो ड्रॉ कर सकते हो, समझ में आएगा कि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. करना है कि नहीं करना है? चलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखो. द पोटेंशियल डिफरेंस established the potential difference established due to the potential difference established due to electrode half reaction. The potential difference established due to electrode half reaction एक मिनट बच्चों, जस्ट गिव मी. ओके बच्चों, क्या बोला मैंने? द पोटेंशियल डिफरेंस established ड्यू टू electrode half reaction occurring at electrode surface
is called as electrode potential. Is called as electrode potential. उसके बाद ऐसे लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऐसे लिखो, एक जगह लिखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरी जगह लिखो रिडक्शन पोटेंशियल। समझा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नीचे लिखो ई ऑफ एनोड और उसके नीचे लिखो ई ऑफ कैथोड। समझा बच्चों? ऐसे चार्ट बना के लिखो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन बताओ जल्दी से, क्या आएगा? इसके नीचे क्या लिखेंगे? व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? बोलो। पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ विच रिएक्शन? Oxidation half reaction. Very good. Write down. The potential associated with oxidation half reaction is called as oxidation potential. The potential associated with oxidation half reaction is called as oxidation potential. ठीक है? रिडक्शन का बताओ क्या आएगा? पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ Reduction half reaction. करेक्ट, वेरी गुड। पोटेंशियल एसोसिएटेड with reduction half reaction is called as reduction potential. चलो यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद लिखो सेल पोटेंशियल, नेक्स्ट हेडिंग सेल पोटेंशियल, ई ऑफ द सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल पोटेंशियल, ई ऑफ द सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल लिखो। इट इज द हाँ क्या हेलो मैम क्या लिखना है फिर से बोलिए। ये लिखना है, ये सेल पोटेंशियल ब्रैकेट में लिखो ई ऑफ द सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेल पोटेंशियल, इट इज ई ऑफ द सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल। लिखा? चलो लिखो इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ, it is the algebraic sum of oxidation potential and reduction potential. It is the algebraic sum of oxidation potential and reduction potential. यहाँ तक सबको क्लियर है? नो कंफ्यूजन? चलो अभी हम जाएंगे, और सॉरी ये लिखो आई एम सो सॉरी, ये लिखो E of the cell is equals to E of cathode plus E of anode. E of the cell is equals to E of cathode plus E of anode. Done, ma'am. Done. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो अभी स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स, और ये चारों स्टैंडर्ड कंडीशंस लिखो फटाफट। Solids and liquids in the purest form, temperature 25 degrees Celsius, pressure 1 atmosphere, concentration 1 molar. हो गया? Yes, ma'am. हाँ अभी ये हेडिंग लिखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E नॉट ऑफ एनोड। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E नॉट ऑफ एनोड क्या आएगा बोलो?
the potential associated with oxidation half reaction, the potential associated with oxidation half reaction when all the species involved when all the species involved are under their standard conditions, are under their standard conditions. अभी मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डेफिनेशन बताओ. नेक्स्ट हेडिंग, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E naught of cathode. क्या आएगा डेफिनेशन? With reduction half reaction when all Yes. the species involved are at point. Very good. Very good. Correct. The potential associated with reduction half reaction when all the species involved are under their standard conditions. इसके बाद standard potential of the cell और standard EMF of the cell. Standard potential of the cell or standard EMF of the cell. ब्रैकेट में लिखो E naught of the cell. क्या फॉर्मूला आएगा? E naught of the cell is equals to E naught of cathode minus E naught of anode. ठीक है, आई होप सबको इतना समझ आया अच्छे से. मैम अभी जो आपने डेफिनेशन दिया वो कौन सा था? कौन सा वाला? ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. उसका डायरेक्टली यही लिखने का, E naught of the cell is equals to E naught of cathode minus E naught of anode. चलो हो गया सबका अच्छे से. यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? ये फॉर्मूला है जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे. ठीक है, E naught ऑफ द कैथोड दिया रहता है, एनोड दिया रहता है, E naught ऑफ द सेल पूछता है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को लिखना है. अभी मैं एक एकदम छोटा सा डेरिवेशन सिखा देती हूँ, फिर हम लोग स्टॉप कर देंगे. नर्न्स्ट इक्वेशन. NERNST'(S), Nernst equation. ठीक है, Nernst was a person who has given a relationship between E of the cell and E naught of the cell. ठीक है, उसने ये रिलेशनशिप दिया. बराबर है. अब देखो, हाँ, Nernst ने क्या बोला? E of the cell is equals to E naught of the cell minus RT upon NF ln Q. ये इक्वेशन नर्न्स ने दिया. मैं आपको बताती हूँ. E of the cell क्या है, तुम लोग ही बताओ. What is E of the cell? बोलो. पोटेंशियल ऑफ द सेल. करेक्ट. एंड व्हाट इज E naught Cell of the cell? potential. Standard correct. potential. परफेक्ट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी where E of the cell is equals to potential of the cell और cell potential. ठीक है, E naught of the cell क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल. R हो जाएगा गैस कांस्टेंट. याद है कितना रहता है? 8.314
जूल्स पर मोल पर केल्विन, ठीक है। T इज इक्वल्स टू टेम्परेचर, और ये अभी अपना 25 डिग्री सेल्सियस है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। याद है हम लोग कैंसिल जो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देते हैं, so that is number of electron. F is equals to Faraday's constant. कितना था Faraday's constant, कौन बताएगा? 9654 कूलम। वेरी गुड, वेरी गुड। और Q क्या है यहाँ पे पता है? concentration of product upon concentration of reactant, ये मेरा Q है। इतना समझा? अब मैं ये वाला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। E of the cell is equals to E naught of the cell, देखो ऊपर का, माइनस RT upon NF ln concentration of product upon concentration of reactant। यहाँ तक सबको क्लियर? सिर्फ मैंने Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। मुझे ln नहीं चाहिए, क्या करूं? ln नहीं चाहिए, log टू द बेस चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करूं? बोलो। 2.303 वेरी गुड, वेरी गुड। E of the cell is equals, माइनस ऐसे का ऐसे रहेगा 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 हो गया अभी, ठीक है। सो इट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, हो गया। अब ये वैल्यूज देखो बच्चों, ये वैल्यूज है, सब वैल्यूज दिए हुए है कि नहीं? इसका वैल्यू 8.314 है, ये 25 डिग्री है, 96500। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये हो जाता है E ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.09592 हो जाता है सॉल्व करके, अपॉन N log टू द बेस 10 concentration of product अपॉन concentration of reactant। ये हो गया आपका नर्न्स्ट इक्वेशन। कितना इजी था, आया समझ में? अब यहाँ पर एक Yes. चीज क्या करनी है, अगर आपका कोई भी मेटल है या कोई भी कंपाउंड है, वो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड, और इफ इट इज प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली 1 मोल कंसिडर करने का, समझा? अभी जैसे मैं आपको बोलती हूँ, एक एग्जांपल सिर्फ दे रही हूँ कि Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Mg सॉलिड। तो अगर मैं इसको नॉन्स्ट इक्वेशन में डालती हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मैं सिखाऊंगी। E ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0592 अपॉन कितना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुआ? 2 log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है ना? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0592 अपॉन 2 log टू द बेस 10, प्रोडक्ट क्या है मेरा? Mg सॉलिड, समझा? डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है मेरा? Mg2 प्लस। देखो अभी ये सॉलिड है ना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 1। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया? E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0592 अपॉन 2 log टू द बेस 10 1 अपॉन Mg2 प्लस। समझा अभी? तो जो भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉलिड रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लेने का। इस तरह से आपको उसको नॉन-स्टिक इक्वेशन में डालना। ये मैं सिखाऊंगी बाद में, मैं सिर्फ अभी ये बता रही थी कि अगर प्योरेस्ट सॉलिड होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 लेने का। समझा? नॉन-स्टिक इक्वेशन समझ आया सबको अच्छे से बच्चों? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस नॉन-स्टिक इक्वेशन? से यस और नो? Yes, ma'am. प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो भी आपका भी, हम लोग देखो ना प्रोडक्ट कैसे लेंगे, तो उसके लिए सेल रिएक्शन तो चाहिए ना। सेल रिएक्शन रॉन्ग लिखोगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रॉन्ग हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। E नॉट ऑफ द सेल दिया रहता है और ये पूछते हैं, समझा? तो अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल पूछा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कैथोड माइनस एनोड वाला। लेकिन ईएमएफ ऑफ द सेल पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करने का। क्लियर? लिख लो ये इतना, और फिर आपकी छुट्टी। ये वाला मत लिखना, ये वाला पार्ट मत लिखो कि मैं वापस से नॉन-स्टिक इक्वेशन में कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, नेक्स्ट टाइम बताऊंगी वापस। अब ये लिख लो नॉन-स्टिक इक्वेशन, और ये पूरा यहाँ तक लिखो। हो जाएगा तो बोलो, कैमरा नीचे करती हूँ। देन यू राइट डाउन द नेक्स्ट पार्ट। क्लियर बच्चों? किसी को कुछ पूछना है नॉन-स्टिक इक्वेशन में?
आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. फटाफट लिखो, अपने पास अभी 8 मिनट है. ओके, नीचे करती हूँ, ठीक है. ऊपर पकड़ लेती हूँ कैमरा, आप लोग लिख लो. ये नॉन स्टिक क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट. और ये n विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आप कैंसिल करते हो ना, वो वाला पार्ट. आई होप टुडेज लेक्चर इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. और जिनको वो सेल रिएक्शन वाला नहीं समझा, आप लोग वो कल वाला वीडियो देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा. और अभी जितने भी आगे के टॉपिक्स है, सब नॉन स्टिक क्वेश्चन पे है. सारे न्यूमेरिकल्स भर भर के है. तो नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल, मैं आपके न्यूमेरिकल्स लूंगी और 2-3 डेरिवेशन और सिखाऊंगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 106. ठीक है, 106 चल रहा है अपना पेज नंबर. कल और 2-3 पेजेस ले लेंगे. शाम को लेक्चर नहीं है मेरा, कल रहेगा 10:30. ओके, डन एवरीबॉडी. Yes, ma'am. ओके, कुछ पूछना है किसी को? वेट मैम. हाँ हाँ हाँ, आराम से आराम से. इतना ही सिखाने वाले, अभी आगे कुछ नहीं सिखाने वाले ज्यादा, फिर नहीं तो सब बाउंसर चला जाएगा. ये फॉर्मूला याद हो. आज आपने कितना फॉर्मूला सीखा? 2. एक ई नॉट ऑफ द सेल का और एक ई ऑफ द सेल का. प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. उसको कैसे सॉल्व करने का मालूम है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, डिवाइड करके, लॉग निकाल के, मल्टीप्लाई करके, फिर सब्ट्रैक्ट करने का, उल्टा उल्टा जाने का. पहले ये डिवाइड करके, देन यू हैव टू टेक आउट द लॉग, फिर इससे मल्टीप्लाई करने का, और फिर इससे सब्ट्रैक्ट करने का, तो ई ऑफ द सेल आता है. बहुत लंबा समय, एक सम करने को आधा घंटा जाएगा, आधा घंटा. when we take all these type of questions in the regular lecture, 2 घंटे में सिर्फ 4 सम होते हैं, सिर्फ 4 सम. तो इसलिए कल आओगे ना बच्चों, तो लॉग बुक याद से लेके आना, ठीक है. जब भी मेरे लेक्चर को आओगे, लॉग बुक लाने का ही, चाहे थ्योरी हो चाहे कुछ भी हो, लॉग बुक लेके ही बैठा करो. हो गया सबका बच्चों? नॉन स्टिक इक्वेशन तक सबको अच्छे से समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? कल मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू अप्लाई द इक्वेशंस टू द नॉन स्टिक इक्वेशन, ठीक है. Is it very clear? Just give me a quick yes into the chat box if it is very very clear to everybody. सबकी तरफ से मुझे ये समझ. अच्छा, क्या लिखा है? हाँ, यस यस साक्षी. ये सब वैल्यूज है ना, ये वाले वैल्यूज 2.303,
8.314 25 96500। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अपने को खुद ही सॉल्व करके दे दिया कि बाबा इतना झंझट मत करो, डायरेक्टली 0.0592 लिख दो। समझा साक्षी? ओके ठीक है, चलो स्टॉप करेंगे लेक्चर, कल मिलते हैं। वेलकम, बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड बट डू योर स्टडीज आल्सो। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय।